السلام علیکم پاکستان اینڈ گڈ مارننگ پاکستان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور ہمیشہ کی طرح دیتی ہوں دعا خوش رہیں, آباد رہیں, اپنوں کے ساتھ رہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اور خاص طور پہ اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ ہے. اس دعا کے ساتھ میں اپنے مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبھی کا آغاز کرتی ہوں. ناظرین, آف کورس آپ سے جب بھی کوئی بات کرتی ہوں تو وہ دنیا, جب ہم کچھ ظاہر سی باتیں کچھ پروسیجر سے گزرتے ہیں, بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں, بہت ساری چیزیں فیس کرتے ہیں, کہیں آف کورس ڈیسیجن لیتے ہیں, کہیں درگزر کرتے ہیں, کہیں معاف کرتے ہیں, پھر ظاہر سی بات ہے ایک زندگی کا حصہ ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی میں ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں نا تو ہمیں صحیح اور غلط کا نہیں معلوم ہوتا, دکھ اور سکھ کا نہیں معلوم ہوتا, اچھے اور برے کا نہیں معلوم ہوتا. بہت ہی معصوم, اسی لیے بچوں کو فرشتہ کہا جاتا ہے, فرشتے جیسے, کیونکہ انہیں کچھ بھی نہیں ایسی چیز جو اگر کچھ کریں گے بھی تو وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آئے گی. جیسے لڑ لیتے ہیں, دھکا دے دیتے ہیں کسی بچے کو تو ہم کبھی نہیں کہیں گے, لیکن اگر ہم زیادہ سمجھدار ہوں, بڑے ہوں, اور اگر ہم کسی کو دھکا دے دیں, کسی سے لڑ پڑیں, تو ہمیں فوراً کوئی نہ کوئی انڈیکیشن یا خود سے یا کوئی نہ کوئی بعد میں کہتا ہے بیٹا بری بات ہے, کیونکہ ہمیں اس سے بڑے سمجھدار کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے. جیسے جسٹس نہ ہونا, انصاف نہ ہونا, جب ہم کسی کو ایک رسپیکٹ دیتے ہیں, اس کے پاس جا کے عرضی لے کے جاتے ہیں اور وہ سنے نا, تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات وہاں تک لے کے گئے لیکن وہ سنوائی نہیں ہوئی. ایک ونس اپون اے ٹائم ایک بادشاہ تھا, وہ کافی بد اخلاق اور بد مزاج تھا. تو اس نے کہا کہ پوری اپنی رعایا سے کہا کہ مجھے جو ہے ایک دنیا میں سب سے گندی چیز کیا ہے, جو لے کر آئے گا میں اس کو انعام دوں گا. کوئی مطلب کوئی مرا ہوا چوہا لے آیا, کوئی گندا کپڑا, اور بہت ایسے غلیظ چیز کہ دنیا میں سب سے گندی چیز کیا ہے, کوئی کیا لے کر آیا, کوئی کیا لے کر آیا, کوئی کچرا لے آیا, بولے یہ گندی ہے, یہ اس سے بہت گھن آتی ہے. ایک بندہ زبان لے کر آ گیا. بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا اس سے گندی چیز کوئی نہیں, کہ یہ جب بولتی ہے نا تو آپ کا جو تلوار سے کٹا ہوا جو زخم ہے نا وہ بھی بھر جائے گا, لیکن اس کا لگا ہوا گھاؤ بھرتا نہیں ہے. بادشاہ نے بولا اوکے. پھر ایک اور اعلان ہوا کہ سب سے اچھی چیز کیا ہے, جو سب سے اچھی چیز لگا اس کو میں انعامات دوں گا. کوئی مٹھائی لے آیا, کوئی مکھن لے آیا, وہی آدمی دوبارہ زبان لے آیا. بادشاہ کو غصہ آ گیا. اس نے کہا یہ کیا, جب میں نے تمہیں کہا سب سے غلیظ سب سے گندی چیز لاؤ تو تم زبان لے آئے, اور تم آج میں نے کہا سب سے اچھی چیز لاؤ تو تم زبان لے آئے. اس نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے اگر مرتا ہوا انسان, اس سے بھی آپ اچھی طرح بات کرو, محبت کرو, یعنی کہ آپ کی صدیوں پرانی لڑائی کسی سے ہو, اگر وہ آپ کے پاس آ جائے اور آپ کی کنڈیشن ایسا ہو تو آپ اس کو بھی, اس سے بھی معافی مانگ لو گے اور اس کو بھی معاف کر دو گے. یہ ایسی چیز ہے. اور صرف یہ زبان جس میں ہڈی نہیں ہوتی, اور واقعی میں ہمارے دل میں بھی کوئی ہڈی نہیں ہوتی, تو جب دل بند ہو جاتا ہے پوری باڈی بے مقصد, کہتے ہیں نا کہ کسی کو اٹھانے کے لیے اٹھاتے جب ہیں, جب ہم کسی کو جنازہ اٹھاتے ہیں نا اس لیے اس کو دفنانے کے لیے, تو جب کوئی آپ کو بہت کندھوں پہ اٹھا لینا تب بھی بی کیئرفل رہیے گا, کیونکہ وہ جب آپ کو دفنانے لگتا ہے تو آپ کو کندھوں پہ اٹھا لیتا ہے. تو زندگی میں یاد رکھے گا کہ انسان اپنی زبان سے بہت کچھ جیت لیتا ہے اور بہت کچھ تباہ کر لیتا ہے. اسی لیے کوشش کریں کہ کم استعمال کریں, اور کوشش کریں اگر جب بھی دل کرے کہ میں بس ہر چیز بول دوں, اس سے پہلے کہیں آل از ویل, سب اچھا ہے, گڈ ہے. کوشش کریں, کیونکہ کبھی کبھی بہت زیادہ گفتگو سے یا بہت زیادہ ایسی باتوں سے بہت سارے لوگ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بادشاہ کو ایک اچھا میسج ملا تو اس کو فیل ہوا کہ میں کہیں ایسی بد اخلاقی کر جاتا ہوں جو شاید میرے جو ہے رعایا ہے, جو میرے لوگ ہیں
وہ مجھ سے بدزن ہو سکتے ہیں یا بدزن ہو رہے ہیں. تو بس یہ آج کا خوبصورت سا میسج, اپنے گھر میں ہو یا اپنی کسی جگہ پر بھی ہو, اگر کچھ بات سمجھ نہ آئے تو آپ بس ایک بار سوچ لیجئے گا کہ آپ کے امی ابو کیسے تھے. آپ بہت اچھے ابو کے اچھے بیٹی اچھے بیٹے ہیں, اور آپ نبی کی امت میں سے ہیں, اور آپ ان کو چاہنے والے ہیں. اور میں وہ ہوں جو میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں, کیونکہ اس نے میرے لیے ہر چیز پیدا کی ہے, وہی میرے راستے نکالے گا. تو زندگی میں ہمیشہ ہم پتہ کبھی جھنجھلا جاتے ہیں, بہت اچھا ہو رہا ہوتا ہے تو خوش رہتے ہیں, اور جہاں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو جھنجھلا جاتے ہیں. تو ذرا سی تکلیف سے بھی نا جھنجھلانے سے بہتر ہے یہ سوچیں کہ یہ مجھے ایک نیا سبق سکھائے گی, اور یہ سبق میری زندگی کی راہ ہموار کرے گا. لیٹس سی, خوبصورت الفاظ کا استعمال کریں, ایک دوسرے کے لیے اچھا بولیں, اور اگر نہیں سمجھ آئے تو خاموش رہیں. اسی لیے ہم ہو رہے ہیں خاموش, اور لیتے ہیں بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. جگمگائے گئی پھر صبح. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وتھ وینس کے ساتھ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ دوست سبھی, اور آج ہیلتھ سیگمنٹ میں ہم آپ کو گوند کتیرے کے فوائد بتائیں گے. اچھا, ہربل چیزیں کچن میں اویلیبل ہوتی ہیں, اور یقین کریں وہ دور بہت اچھا تھا جب ہم لوگ اپنی دادیوں نانیوں اور ہماری جو ہے جینیس ماؤں سے ٹھیک ہو جاتے تھے. یہ کیا سرپرائز ہے, وہ گھر میں سرکہ, شہد, تمبر, ہینگ اور آمبا ہلدی, شہد, کھجور, کھوپرا. یہ کھوپرا میں نے اکثر بچوں کے نا جب دانت آ رہے ہوتے ہیں نا, اب تو بہت پریپیئرڈ لائف ہو گئی ہے. کھوپرے کو میں نے اکثر دھاگے میں پرو کے یہاں دیکھا گلے میں, جن کے بچوں کے دانت آتے ہیں نا تو بچے کو جھور سی آتی ہے تو وہ ان پہ مارتا ہے. تو سوکھا کھوپرا وہ مارنا, وہ ٹوٹتا نہیں تھا. یہ دیکھو ماؤں کا سوکھا کھوپرا جو ہے نا, وہ کچا کھوپرا تو جلدی ٹوٹ جائے گا تو اس کے گلک میں پھنسے گا. وہ کھوپرا جو ہے نا وہ اتنا سخت ہوتا ہے, وہ جتنا بھی کر لے وہ ٹوٹ نہیں سکتا, اس کے دانت ہی نہیں ہیں. چھوٹے چھوٹے ننے دانت بچوں کو موشن جو ہیں دانتوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں, اور بہت سارے ایسی. اور روز بچوں کو ان کے پاؤں کے تلووں کو ملنا, دھوپ میں تخت یا چرپائی پہ بیٹھ کے ان کا مساج کے لیے, سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. چھوٹے سے ٹپ میں پھر اس کو نہلانا, اور اس کے سر پہ اگر پھپھوندیاں آ جائیں. یہ میں بتا رہی ہوں ہماری مائیں کس طرح ہمیں ٹریٹ کرتی تھی, کیونکہ وی آر انڈر شیلٹر دادی اینڈ نانی, اینڈ اوبے دا آرڈر اینڈ اوبے دا کمنٹس, جو بھی ان کے ورڈز ہیں. لیکن اب جو ہے ہائے اللہ, کہیں مطلب ڈر اتنا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں شاید یہ ہمارے بچوں کو نقصان ہے. نہیں امی ہم ڈاکٹر کے لے جائیں گے, ڈاکٹر کے لے جائیں گے. یقین کریں وہ اتنی اس وقت ہوتا تھا. کہوا مجھے اچھی طرح یاد ہے, فیڈر میں اگر بچے کے پیٹ میں مروڑ یا کچھ ہو, پتہ نہیں وہ ہلکے اسٹائل میں کچھ کہوا بنتا تھا, تو بچے کہوا بھی بچپن میں پلایا جاتا تھا. میری اب وہ کیسا تھا وہ مجھے بیان نہیں, لیکن کہوا میں نے دیکھا کہ امیوں نے بچوں کو اندر ڈی ہائیڈریشن نہ ہو, ان کو کہوا بچے پیتے تھے. وہ کہوا ہلکی پتی ہوتی تھی, اورنج سا ہوتا تھا. اب وہ کیا کیا چیزیں تھیں وہ مجھے نہیں. اب میں یہ ان چیزوں کو ذکر کیوں کری, اس لیے کہ اب جو ہمارے خواتین ہیں گھر میں چیزیں پڑیں گے, لونگ, تیز پات, یہ وہ, بڑی الائچی, چھوٹی الائچی, سفید زیرے میں جتنے فوائد ہیں آپ حیران, میتھی دانہ, لیکن ہم کو اس کی نالج نہیں ہے, جس کی وجہ سے اب ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو ہم سنتے ہم کہتے ہیں بھئی یار یہ ایسا ہوتا ہے. میں نے بس صرف تیرے تک ملنگا ایک سنتا, ٹھیک ہے, جس کو ہم پانی میں گول کریں, لیکن اب پتہ چل رہا ہے یہ تو میں اب رانی آپا کی وجہ سے پتہ چلا یہ, ورنہ اس سے پہلے شاید یہ بھی مجھے نہیں معلوم تھا. لیٹس سی, آج میں ملواتی ہوں. آج ہم بات کریں گے گوند کتیری کے فوائد, اور واقعی میں بڑے, اگر آپ کا جگر کو ٹھنڈا رکھنا ہے, معدے کو ٹھنڈا رکھنا ہے. یہ میں بتا رہی ہوں ہربلسٹ نہیں ہوں, آپ کو بتائیں گے صحیح بولے کہ نہیں, اپنے ہاتھوں کو کمفرٹیبل زون میں رکھنا, کانسٹیپیشن نہیں ہونے دینا, اور بہت کچھ یعنی کہ چل اسکن کو رہنا ہے. تو آپ گوند کتیری کو دیکھیے گا کیسے آج بتایا جائے گا. اس کے فوائد سے حکیم
मुस्तफ़ा अनीस साहब बताएंगे कि आपके अंदर ऑर्गन को बूस्ट अप कैसे करेगा. लेट्स सी. मैं मिलवाती हूँ हर्बल दुनिया की रानी आपा से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आपा? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ. मजे में. बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह. ओके आपा, आज हम बात करेंगे गोंद कतीरे के बारे जी, में. आज गोंद कतीरे के लिए बात करेंगे, इसके फ़वाइद के बारे में बात करेंगे. ख़ास तौर से गोंद कतीरे का इंतखाब मैंने आज इसलिए किया कि गोंद कतीरा ख़ास तौर पर स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी ऐसे फ़वाइद इस अकेले गोंद में है. क्योंकि गोंद बहुत तरह के होते हैं. चुनिया गोंद होता है, नीम का गोंद होता है, कीकर का गोंद होता है, बहुत सारे गोंद होते हैं. और गोंद जो है वो दरख्तों की छाल में से निकलता है, कुदरत की तरफ से दरख्तों के तने में पैदा होता है. नीम का गोंद, नीम के तना, बड़ा सा नीम का तना होता है और उस पर जो छाल होती है, अल्लाह ने जो उस पर गिलाफ चढ़ाया हुआ है पतली सी लकड़ी की सूरत में, तो वो उसमें से निकलता है. और बाज़ दरख्तों को शगाफ लगाना पड़ता है उसका गोंद निकालने के लिए. और गोंद बहुत ही मौसर चीज़ है और हर गोंद के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, लेकिन ख़ास तौर से हमने इसका गोंद कतीरे का इंतखाब किया कि आसानी के साथ आपको मिल जाएगा. इसकी शक्ल भी बताएंगे, इसका इस्तेमाल भी बताएंगे जी, और इसके इस्तेमालात भी बताएंगे और इसके बेनिफिट भी बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ तो मौजूद हैं हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? अल्लाह के नाम. मज़े. अल्हम्दुलिल्लाह. यार ये बड़ी अच्छी सिलेक्शन की गोंद. मैंने ये जो गोंद है ये अल्लाह के हुक्म से बहुत बेहतरीन चीज़ है. ये गर्मियों का एक तोहफा है क्योंकि अल्लाह ने इसमें कैल्शियम भी रखा है, वाह, विटामिन बी भी रखा है, जबरदस्त. विटामिन सी भी रखा है, आयरन भी है, पोटेशियम भी है और इसमें जिंक भी पाया जाता है. ओके. मतलब ये ब्लड के लिए भी है, बेहतरीन. लिवर के लिए भी है, स्टमक के लिए भी है, खून के लिए भी है, दिमाग के लिए भी है, हड्डियों के लिए भी है और मेरे लिए भी है. और ये तो सबके लिए है. ओके, ये आप लोगों के लिए भी है. आप अब नाज़रीन हम प्रॉपर तरीके से आते हैं. हम ज़रा गोंद कतीरे की आपको शक्ल भी दिखाते हैं और गोंद कतीरे के बारे में रानी आपा कुछ होम रेमेडीज़ भी बताएंगी और फिर बताएंगी इसके फ़वाइद क्या होंगे. जी ओवर टू यू. अच्छा जी, एक सबसे पहले इसका आगाज़ मैं इस तरह करूं कि रात को जब आपकी कॉल आई तो मैंने अपने बेटे से इस पर डिस्कस किया. इसने कहा कि अम्मी सबसे बेहतरीन, ये कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कोई दवा बना रहे थे किसी पेशेंट की गोंद कतीरे से, तो इन्होंने कहा कि यह लेके चलें. तो हमने उसी वक्त, क्योंकि सबसे पहले आपको ये बता दूं कि गोंद कतीरे को इस्तेमाल करने से पहले ये गोंद कतीरे की शक्ल है ऐसी. ये क्रिस्टल के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये गोंद कतीरा है, ये इसकी असल शक्ल है. और लेकिन इसको इसी शक्ल में इस्तेमाल नहीं करना. सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने आपके लिए इसको इस्तेमाल के लिए, अगर आपको सुबह इस्तेमाल करना है तो रात को भिगो दीजिए, शाम को इस्तेमाल करना है तो सुबह भिगो दीजिए. इसको भिगोने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे चाहिए होते हैं, तब ये इस फॉर्म में आता है. आप ये देखें कि ये बिल्कुल यानी जेल सॉफ्ट. एक तरह से लोग कहते हैं कि इसको आप भिगो दीजिए ये जेल बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है. आप ये बिल्कुल इस तरह की शक्ल में आता है जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ. और इसमें मैंने कुछ टुकड़े इसके मोटे मोटे भी रखे हैं कि आपको पता लगे कि ये किस तरह होगा. ये देखें फूल कर ये एक टुकड़ा इस तरह बन जाता है. आप हथेली पे यूं डालें और इसको ऐसे करें. जी, मैं आपको ऐसे, ये ज़्यादा जी, अच्छा. जी, ये देखें ये टुकड़ा, ये देखें ये सारा ऐसे. मैंने कहा कि आज आपको खास तौर से मैं दिखाऊं पानी की तरह मेल्ट हो. जी जी जी, ये आप देखिए जैसे एक बहुत ही खूबसूरत सी बॉल हो, पानी की बॉल, और इसको हम ऐसे करेंगे तो ये दिखाने का मकसद ये कि नर्म सी है. और जो बिल्कुल ज़्यादा पानी के अंदर फूल गया है वो ये है. और इसको जो इस्तेमाल का तरीक़ा है कि ये एक दिन में 4 ग्राम से ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना है. अच्छा. आप ये समझ लीजिए कि 4 ग्राम ये वज़नी होता है, 4 ग्राम का टुकड़ा ये हो सकता है. एक आदमी के लिए एक दिन की खुराक ये है 4 ग्राम का एक टुकड़ा. दिखाने का मकसद ये था. जी जी. और कभी भी इसको पीसने के लिए डायरेक्ट मत इस्तेमाल कीजिएगा, वरना आपका जो भी ग्राइंडर है उसके ब्लेड टूट जाएंगे. ये इस फॉर्म में जल्दबाजी नहीं कर. जी, आप इसको भिगोइए. ये भिगोने के बाद आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत सारी, जैसे गर्मी के अंदर इसकी तासीर ठंडी है. अगर आपने रात को भिगोया तो सुबह आप इसको, या आपने देखा इस शक्ल का है. अगर आप इसको एक टुकड़े को, ये मैंने काफ़ी सारा भिगोया था आपको दिखाने के लिए कि इसको आप किस किस तरह इस्तेमाल करेंगे. ये एक टुकड़ा आप रात को 4 ग्राम का भिगो दीजिए.
आधे ग्लास पानी में तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, जेली की तरह नहीं होगा लेकिन मेल्ट हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट सुबह में नहार मुँह भी पी सकते हैं। इसको मशरूब बनाने के लिए आप इसमें कोई शरबत डाल लीजिए, इसमें दूध डाल लीजिए, किसी किस्म का जो भी आप पसंद करते हो फ्लेवर वो डालकर आप इसको पी लीजिए। ये पीने में या खाने में इसका ना कोई जायका होता है, ना कोई खुशबू होती है, ना कोई बदबू होती है कि आप ये कहें कि मुझे जायका अच्छा नहीं लगा, मुझे खुशबू अच्छी नहीं लगी। अल्लाह की तरफ से अपने अंदर बेशुमार फ़वाइद लिए हुए कि बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि ना इसका कोई खुशबू या बदबू है और ना इसका कोई आपको फ्लेवर महसूस होगा। तो सबसे पहले स्किन के लिए, ये तो मैंने आपको पीने के लिए बताया कि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा आपको जिस्म में बहुत लेथार्जिक आपकी बॉडी हो रही है, वीकनेस महसूस हो रही है और आप ये महसूस करते हैं कि बहुत ज़्यादा दिन में मुझे पसीना आ जाता है, आजकल बहुत ज़्यादा आपसे पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है और आप एनर्जेटिक नहीं रहे, आपके जिस्म में वीकनेस आ रही है, जिस्म लागर हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना निकलने की सूरत में इंसान में बहुत कमज़ोरी आ जाती है। तो ये जब आप अपने पास थोड़ा सा लेकर भिगो कर रख लेंगे तो आप किसी भी वक्त दिन में एक बार इसको ले सकते हैं और इसको फौरी तौर पर आप उसमें डालेंगे ग्लास में और अगर चाहें तो इसको ग्राइंड कर लें। आप इसको दूध के अंदर, शरबत के अंदर मिलाकर बहुत अच्छे तरीके से पी सकते हैं। इसके अलावा और सादा भी पी सकते हैं क्योंकि इसमें जायका तो कोई है ही नहीं कि शुगर पेशेंट है, नहीं मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता और ये नहीं अच्छा लगता, कुछ लोग दूध नहीं पीते, तो आप इसको सादा भी पानी में मिलाकर ले सकते हैं और इसके क्योंकि फ़ायदा आपको लेना है, इससे जायके का आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके अलावा स्किन के लिए इस तरह बेनिफिशियल हो सकता है कि जैसे ही आपने भिगो दिया है, इसमें से आप एक खाने के लिए मैंने 4 ग्राम बताया है, लेकिन लगाने के लिए आप 1 टेबल स्पून भर के गोंद कतीरा का लें। इसको किसी भी छोटी सी प्याली में ले लें। इसके अंदर अंडे की सफ़ेदी मिक्स करें, इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस यानी चंद कतरे आप इसमें डाल लीजिए और इसको और बेहतर बनाने के लिए लेमन जूस के साथ साथ आप इसको बेहतर बनाने के लिए या तो कॉर्नफ्लावर मिला लीजिए या मैदा मिला लीजिए या आपके पास जौ का आटा है उसको एक बेहतरीन सा पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर आप लगा दीजिए मास्क की तरह। 10 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए और 10 मिनट के बाद जब आप अपने ये हल्का सा खुश्क होने लगे, खुश्क होने का तरीका मैंने बताया था कि यहाँ से महसूस करें, अगर ड्राई हो रहा है तो फिर आप वॉश कर दीजिए, ये आपका धोने का टाइम आ गया। तो अल्लाह के फजल से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी, शाइनी हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी जी, जो डिहाइड्रेटपन खत्म हो जाएगा। अगर आपकी स्किन लेथार्जिक हो गई है, डिहाइड्रेट हो गई है, जब आपकी स्किन हो जाती है तो बिल्कुल रिंकली हो जाती है, खुश हो जाती है देखने में, उसको एनर्जेटिक करने के लिए आप इसको लगाइए भी और खा तो रहे हैं आप। 4 ग्राम इसको पानी में मशरूब बनाकर पी लीजिए। देखिए जब इसको गोंद का मतलब क्या होता है, बिल्कुल चिपक पैदा करना। गोंद का मतलब होता है आप किसी भी गोंद को जब इस्तेमाल करें, गोंद कतीरा कोई सा भी गोंद हो, तो उसको जब आप भिगोकर इस्तेमाल करेंगे, अपने हाथों पर महसूस करेंगे तो उसमें चिपक पैदा होगी। और चिपक जब इंसान की हमारे यहाँ हमारी स्किन में जो कोलेजन नाम का एक मादा है उसमें चिपक है, उसके अंदर चिपक है। उसी चिपक की वजह से आप ये देखें कि जब अल्लाह ने स्किन बनाई है हमारी, जब हम खींचेंगे तो ये वापस चली जाएगी। और इसी तरह गोंद है, जब हम खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा और जब हम इसको ऐसे करेंगे तो इस तरह टाइट हो जाएगा। तो आपकी स्किन के कोलेजन को बेहतर करने के लिए भी आप पीने में भी इसको इस्तेमाल करें और लगाने में भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन। ज़बरदस्त। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं, लेकिन हमारे साथ अकीम मुस्तफ़ानी साहब हैं, उन्होंने भी बताना है कि आज हमने गोंद कतीरा, तो अब आप इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए अल्लाह के हुक्म से ये तो अल्लाह की नेमतों में नेमत है, इसके बेतरह के बेजा किस्म की जो है वो फ़वाइद हैं। आप जिस तरह मर्ज़ी लेंगे उस तरह से इसका बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन मैं अपनी बात इस तरह कर देखें, जितनी साइंस जिद्दत का पैदा हो रही है उतना बजाय बीमारियां ख़त्म होने के अमराज बढ़ते जा रहे हैं। यार ये बात ना मुस्तफ़ा भाई आपने बिल्कुल मेरे मिजाज, मैं यही सोच रही हूँ कि जितनी हम नॉलेज हासिल कर रहे हैं उतनी डिजीज़ बढ़ रही है और जितनी फैसिलिटेशन हो रही है उतने ही प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। उसकी जो सबसे अहम वजह वो क्या है कि हमने अपनी नेचुरल चीज़ों को छोड़ दिया है, हाँ ठीक, आर्टिफिशियल चीज़ों पे आ गया। ओके, पहले क्या होता था, कोई भी प्रॉब्लम है घर की चीज़ होती थी, अब क्या है कोई प्रॉब्लम है आपको ऑन द स्पॉट जो है वो बाहर जाना है, दवाई लेके आना है।
تو ہم نے اپنی چیزوں کو ختم کر کے بیرونی چیزوں کو کھانا شروع کر دیا. اس نے میدے کو تو تباہ یہ کر ایک دیا. سب سے بڑا ڈرا بیک ہو گیا. بالکل ایسے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ بھی دیکھیں، آپ بھی اسی زمانے کے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا جو آج کا زہر ہے وہ ہے چکن، مرغی. اس چکن کو جو ہے وہ اپنی زندگی سے نکالیں ٹھیک ہے. تو بہت سارے امراض انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. کیونکہ میں نے کئی بار ایک بات کہی کہ آج کل جو اللہ کے حکم سے ہم کینسر کا علاج کر رہے ہیں، تو ہم نے اس کینسر کی جو شرح ہے اس میں جو 90% اضافہ دیکھا، وہ دیکھا 3 چیزوں کے ہونے سے. سب سے پہلے گھی کا استعمال ختم کرنا، تیل کا استعمال شروع کرنے کی وجہ سے. دوسرا، لوہے کے برتن کو اپنانا اور مٹی کے برتن کو چھوڑنے کی وجہ سے. تیسرا، سبزیوں کو چھوڑ کر صرف مرغی اور مرغی کھانے کی وجہ سے. تو یہ ایک سب سے بڑا پرابلم ہے. تو خدا را ان چیزوں نکالیے اور نئی چیزوں کو اپنائیں. کیا کہیں؟ بلکہ ایک بات کہنا چاہوں گی صاحبی، جی. میں اپنے بیٹے مصطفیٰ کی بہت زیادہ فین ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا علاج اس کے ذریعے ہی کرتی ہوں، یہی میرا علاج کرتے ہیں. سب سے بڑی بات جو میں اپنے کیوں آپ بیٹے کی کی فیس بہت زیادہ ہے؟ آپ اپنا علاج خود کیوں نہیں میں کرتے؟ کر نہیں سکتی، کوئی اور میڈیسن نہ لے نہیں سکتی ہوں. مجھے لگا رانی آپا کے چارجز بہت زیادہ. رانی آپا نے کہا نہیں میں مصطفیٰ کے پاس جاؤں میں گی. مصطفیٰ سے کرواتی ہوں اور الحمدللہ آپ دیکھیں بالکل نہیں، اس ٹھیک میں ہوں. کوئی شک نہیں. میں میرا یہ بھائی کہنا بہت چاہتی اچھا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کی اس قدر فین ہوں کہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے میرے بیٹے نے جب میڈیا پر آنا شروع کیا، اس وقت اس نے چکن کے خلاف آواز اٹھائی، اس وقت اس نے گھی کے خلاف آواز اٹھائی. بہت ساری لابی کے لوگوں نے میرے بیٹے کو غلط قرار دیا، لیکن میں وہ قابل فخر ماں ہوں کہ پہلے دن سے اپنے بیٹے کی اس قابلیت پر فخر کرتی ہوں. اور آج زمانہ اس کے ساتھ چل رہا ہے. نہیں، مصطفیٰ صاحب، وہی بات ہے کہ آپ صحیح ہیں، ہم غلط تھے. نہیں، مصطفیٰ، حقیقت جن لوگوں نے، جو لوگ اگینسٹ تھے وہ آج بیٹھ کر چکن کے خلاف لیکچر دیتے ہیں. اور جب میرے بیٹے نے 5 سال پہلے آواز اٹھائی اپنی قابلیت کی بنا پر، اپنی ریسرچ کی بنا پر کہ خدا را گھی کھانا شروع کر دیں، کیوں اتنی دل کی بیماریاں ہو رہی ہیں، کیسے اگر تیل اتنا فائدہ مند ہے تو کیوں شریانے 90 آپ چلے جائیں ہارٹ کے ہاسپٹل میں بھرے پڑے کہ آپ کی لائن ہی نہیں آئے گی. حقیقت. کیوں اتنے ہارٹ پیشنٹ بڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم لوگ اصلیت سے دور ہو گئے، آرٹیفیشل دنیا میں آ گئے. بالکل ایسے. اور یہیں سے ہم لوگ صحت مند ہونے کے بجائے بہت زیادہ نقصانات کا شکار ہیں. اور عمریں بجائے بڑھنے کے کم سے کم تر ایوریج ہوا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم بلکہ لوگ بہت نیچر سے سارے دور ہو لوگوں گئے. کو کم عمر میں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر چھوٹے بچوں کو گلاسز لگے ہوئے ہیں، ہڈیوں کا درد ہے، اور بچوں کی امیون سسٹم اتنے ویک ہے. پہلے تو ہمارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اب بچوں کو دیکھو گلاس لگے اور وقت سے پہلے ان کے بال وائٹ ہو رہے ہیں، وقت سے پہلے آپ ان کو دیکھو. اچھا، ان کی گرومنگ جو آپ کی یہ بات ہے نا، یہ فارمی مرغی بچے وقت سے پہلے بڑے بھی ہو رہے ہیں ایسے عجیب کنڈیشن. جیسے مطلب ایک ہوتا تھا، ایک پروسیجر ہوتا تھا اللہ پاک کی طرف سے ایک ہوتا ہے نا، تو بچے نا بچیاں وقت سے پہلے وہ لگ رہی ہیں ہیلدی، بہت موٹی، اب وہ پریشان ہو جاتی ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. الحمدللہ میرے گھر میں آج بھی جب سے مصطفیٰ کی ریسرچ ہوئی ہے نہ چکن پکتی ہے نہ میرے گھر آئل میں پکتا ہے. اچھا، الحمدللہ. یعنی کہ آپ کوکنگ ایک ہوتا ہے، ایک یہ دیکھیں گے بہت انڈیکیشن کرنے والی بات ہے. اور ہمیں اپنے اس فلور پہ بیٹھ کے، اپنے اسٹیج پہ بیٹھ کے بالکل وہ بات کریں کہ نیچرلی پہلے لوگ سرسوں کے تیل میں کھانا پکاتے تھے. آپ یقین کریں، اور اس کا ذائقہ ہر کھانا پکتا تھا. آپ مت سوچیں جی سبزی بنتی تو یہ نہیں، باقاعدہ سرسوں کے تیل کو کلکایا جاتا تھا، لہسن یا پیاز کا ایک ٹکڑا ڈال کے اس کی اروما گندا جسے ہمیں وہ ہٹایا جاتا تھا اور اس کو پھر رکھ دیتا. پھر جب آپ پکائیں اس کو پکا سکتے ہیں. آپ یقین کریں پہلے لوگ گھی میں کھانا پکاتے تھے، کوئی ہارٹ بیماری نہیں تھی، وہ ایک گھی ایک پراپر. لیکن اب جتنے بھی آپ لے کر نئے ورائٹی کے آئل آئے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو ہارٹ پرابلم نہیں ہوگا، ان آئل سے زیادہ پرابلم ہو رہی ہے. یہ لابیاں ہیں جو کام کرتی ہیں انسان کی صحت کے خلاف، کہ اگر لابیز کام نہیں کریں گی تو کیسے ان کے زہر بکیں آپ گے. گھی کے پراٹھے میں ہماری امی بناتی تھی یار، گھی کے باقاعدہ امی گھی ایسے کر کے اپنی ان 3 میں صدقے جاؤں اللہ پاک میری ماں کو بخشے، کڑی یوں نکالتی تھی کڑی میرے سرسوں کے سامنے تیل میں. پراٹھا. اور مجھے وہ چینی کا پراٹھا بہت پسند تھا، تو آپ یقین کریں پھر دیسی گھی اوپر ڈالنا. اور مجھے بھی جیسے میں کھڑی ہوں اپنی
मम्मा की टांग जैसे करीब होते ना माए के बस वेट हो रहा है, वो गरम गरम पराठा होते छोटा सा होता था चकोर सा, लेकिन उसमें वो चीनी ये डली हुई और वो यार वो मज़ा ही कुछ और था। कभी नहीं ऐसा हुआ। और फिर वो उनको यूं 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 अजीब से वो तोड़ती थी वो मज़ा था, बहुत खूबसूरत सा एक जिंदगी। सरसों के तेल में खाना। और एक इंडिकेशन करूंगी, फिर ब्रेक लूंगी, फिर मुस्तफ़ा आप अपने डिटेल में हाँ, बताना। मैं बताता हूँ। मैं इसके भी खिलाफ हूँ, ये जो मिनरल वाटर और ये प्लास्टिक की बोतल, दोनों के मैं सच बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रही, हमको इतना शिकंजे में जकड़ लिया है कि अब हम ऐसे हो गए कि जैसे मोबाइल के बिना नहीं रह सकते ना, अब हम ये 60 रुपए की बोतल के बगैर नहीं रह सकते, इस 60 रुपए के पानी के बगैर नहीं रह सकते। लाइनें लगी हैं, बेचारे लोग नौकरियों से आते हैं, पीने का पानी ख़त्म हो गया, वो जा रहे हैं, वो जाके बोतल पता नहीं उसने कितने केमिकल डाले हैं, क्या किया है। फिर उस प्लास्टिक की बोतल पे जब धूप लगती है ना, वो हमारे लिए बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा करता है। सॉरी टू से, बहुत माजरत के साथ, लेकिन मैं कम से कम हक की बात कहूँगी। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि दोबारा वो बचपन में कांच की बोतलें मैं भरती थी ना अम्मी के ये फ्रिज में, जो मेरी ड्यूटी थी कि फ्रिज में बोतल भरनी है कांच की, तो वो सही था। ये जब से हम प्लास्टिक की बोतल में आए ना, आप यकीन करें, और ये मिनरल वाटर में आए, आप मुझे बताएं, आप दिन ब दिन बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो गए। लेट्स सी, लेते हैं अब ब्रेक, और मतलब ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। फूल खिलने लगे नीचे पानी से देखती हूँ जहाँ गीत गाए वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट। तो सभी आपा ने देखे ब्रेक में ऐसी बात कही है ना कि मेरी हंसी निकली। वाकई में हम जैसी औरतों ने लड़कियों ने, जो भी कह दें, ख़वातीन ने, हम लोग लेज़ी हो गए और हर चीज़ प्रिपेयर्ड हो गई है। होटल से रोटी ले आओ, एक तो पूरे कराची में भट्टी खुल गई है, होटल्स खुल गए हैं, और क्या मैं कहूँ, हर चीज़ प्रिपेयर्ड हो गई है। चाय के ढाबे खुल गए हैं, और फिर वो छोटे छोटे ठेले हैं जिस पे छालियाँ चीज़ें बिकती हैं। हमारी ये हो गए। पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था कि हमारी माँओं ने कभी कहा जा बेटा ये जाके रोटी ले, बल्कि ऐसा होता था कि आटा गूंथती थी तो कहते थे ये रोटी बनवा के लेके आओ, उसके पैसे तंदूर से रोटी पकवा के लाओ। आटा घर का होता था, पता नहीं उनको ये था कि पता नहीं कैसे बनाएंगे आटा गूंथ, लेकिन वो सफ़ेद आटा होता था, इसीलिए वो पसंद ही नहीं करती थी। तो बहुत कम घर में मेहमान आए तो आटा घर से गूंथ के जाता था और बनता था। बात ये कि जितने हम सहल हो गए उतने ही हम दलदल में फंस गए। एक बार फिर खुश आमदीद रानी आपा और हमारे मुस्तफ़ा भाई, क्या कहेंगे हम जो हैं जो गोंद कतीरे की बात करें, मैं चाहूँगी पहले उस पर आ जाए, फिर क्योंकि ये तो लाइफ स्टाइल तबाह हो गई। सबसे बेहतरीन काम ये बहुत होगा कि मुश्किल भाई होगा। रात को 1 टीस्पून ठीक है। इसको भिगो दिया जाए, सुबह में उठकर छान कर, पहले वैसे होगा इसमें जो पानी है वो पानी इसको छान कर पी लिया जाए। ऊपर से ये गोंद अगर खा लेते हैं ठीक है, तो ये जिगर की गर्मी, यानी कि पहले सुबह निहार मुँह, देखिए 1 टीस्पून ठीक रात है, को आप भिगो दिया। भिगोएंगे। अगर भिगोएंगे इसको आधे कप पानी में तो उससे पानी नहीं होगा। अगर भिगोएंगे आप इसको 1 कप पानी में तो इसमें थोड़ा सा पानी ये सक कर लेगा, आधा कप, और आधा कप पानी छोड़ देंगे। बचा हुआ। ठीक है, जो आधा कप बचा हुआ पानी है वो पानी ठीक पी है। लिया जाए, ओके। ऊपर से ये गोंद खा लिया जाए। तो अगर ये गोंद और ये पानी पी लिया जाता है तो ये लू का बेहतरीन इलाज है। ओके, डिहाइड्रेशन, जो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, उसका बेहतरीन इलाज है। गुड। जिन लोगों को खाने के बाद वॉमिटिंग या उबकाई, ये एक प्रॉब्लम जिसको गैस्ट्रिक अल्सर एसिडिटी कहा जाता है। एसिडिटी जी भी, जी। ओके, देखिए तेजाबियत एक अलग चीज़ है। ठीक मैंने है। तो कहा जिगर गर्मी की वजह से मैं समझ उबकाइयाँ ठीक आती है। हैं, ओके, ओके। भूख लगती है। ठीक है। तो अगर ये पानी पी लिया जाए, ऊपर से ये गोंद खा लिया जाए, ठीक है। तो ये जिगरी गर्मी, उबकाइयाँ, वॉमिटिंग ख़त्म करता है। तीसरा, जिन लोगों के हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा सनसनाहट रहती है, सुनपन रहता है,
या जिस्म के पोर्स खुल गए, बहुत पसीना आता ठीक है। है, उसके लिए ये पानी बहुत फायदेमंद वाओ, है। जिन लोगों को भी अल्लाह ना करे पेशाब कम आता है ठीक है। या पेशाब रुक रुक के ठीक है। आता है, तो यही जो पानी बचेगा, ये पानी ना पिए, इस पानी के अंदर 1/4 टीस्पून डाल दें मीठा सोडा और वो मिला के पानी पिए, वाओ, तो ये पेशाब की बंदिश को ख़त्म करता है। सही। जिन लोगों के गुर्दों के ऊपर किसी भी एतबार से कोई पथरी या सोजिश या वरम पैदा हो गया है, तो ये उसको ज़ाइल करके पेशाब आवर बन जाता है। अच्छा, जिन लोगों को पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, तो वो इसी गोंद कतीरे के अंदर आधा चमचा डाल दें काले तिल, वो अच्छा, मिला के ठीक खाएं, है, ठीक है। तो ये पेशाब की ज़्यादती को रोकेगा। अच्छा। ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहा जाता है। ये प्रॉब्लम 90% तो मर्दों में होता है, लेकिन खवातीन के अंदर भी ये प्रॉब्लम बहुत मसाने की ज़्यादा हो कमजोरी, गया है, बिल्कुल ठीक। क्योंकि इसका ताल्लुक नलों से है, ओवरीज से है। जब भी पेरोक्साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है तो नलों में वरम आ जाता है, तो ये उस वरम को भी ख़त्म कर। ये दोबारा बताइएगा। जब भी पीरियोडिक नहीं, साइकिल, इसको इस्तेमाल कैसे बताया था? बस ये तमाम इसी- खवातीन सुन ले जिनको बार बार यूरिन बार बार आने का एक प्रॉब्लम होता है ना, अक्सर होता है, कुछ औरतें होती हैं कि यार कहीं जा रहे हो, रुक जाओ पहले मैं वॉशरूम चले जाऊँ, तो पहले क्लियर होती है कि भाई रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, बाजार जाने में प्रॉब्लम नहीं हो, तो वो गौर से सुने। जिनको बार बार यूरिन आता है कि जरा सा पानी पीते हैं, फिर आधे घंटे बाद फिर वॉशरूम या 15 मिनट में आते हैं, तो इसको अब जरा सा सुनेगा जी। अब मुस्तफ़ा भाई क्लियर बताइए। दुआ बता देते हैं जी। डिटेल वो में। रात को आपने गोंद कतीरा भिगो दिया, ठीक है। जो उसका पानी है बचा हुआ वो पी लिया, ठीक है। तो जितना भी ये गोंद कतीरा है उसमें उतनी ही क्वांटिटी के अंदर ठीक है। आपने काले तिल मिला देना, डन हो गए। और फिर जितनी खुराक बनती है, ये खुराक आपकी एक दिन की होगी। ओके, जितनी भी खुराक बनती है इसको आधा आधा चम्मच करके दिन में 2 या 3 मरतबा खा लीजिए, तो एक दिन में ही इंशाअल्लाह ताला वाह। पेशाब की जो ज़्यादती ज़्यादती है वो बेहतर हो जाएगी। और अगर इंशाअल्लाह ताला इसको 7 से 11 दिन कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों को पेशाब का मर्ज है, देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें, एक है पेशाब का मर्ज और एक है किसी कमज़ोरी की वजह से, पानी की कमी कह सकते हैं, हार्मोन की खराबी कह सकते हैं, अमूमी तौर पर पेट की खराबी की वजह से भी ऐसा हो नलों में सकता वर्म है। हो गया, ठीक है, तो ये ठीक है। सब सोजन। चीज़ों में अल्लाह के हुक्म से ये बहुत ही ज़्यादा करामत रह पाएगा। जबरदस्त भाई। सबसे आखिरी और सबसे बेहतरीन बात ये, देखिए इस गर्मियों के अंदर जिस्म में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है, बिल्कुल ऐसे। तो वो बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, और बालों के अंदर एक अजीब सी बदबू या स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आता है। तो यही आजकल एक और बड़ा बेहतरीन अल्लाह की नेमत है, वो है आंवला। आंवला मिलते हैं। अब अगर आंवला का मुरब्बा मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आंवले का पाउडर मंगा लीजिए, सही है। और ये जो गोंद कतीरे का पानी पी लिया आपने, और इसी गोंद कतीरे के अंदर आप ऐसा करें कि 1 टीस्पून लिया है ना, तो आप इसमें 2 टेबल स्पून शामिल कर दें, ठीक है। आंवले का पाउडर, ठीक है। और फिर ये रोज़ाना इस मिलाकर रात को दोबारा से इसको पानी में भिगोएं, सुबह में उठकर छान कर इसका पानी पी लिया जाए। अच्छा, तो इस तरीके से आप कुछ दिन करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये बालों के सारे अमराज का हतमी इलाज हो जाएगा। ज़बरदस्त। आप बहुत ज़बरदस्त मुस्तफ़ा भाई ने डिटेल में बताया। अच्छा, मैं चाहूँगी अगले इंशाल्लाह जुमेरात को ना हम प्रोग्राम करेंगे सिर्फ आंवला। आपने आंवला पाउडर, आंवला रेट जो है इस्तेमाल होता है पानी में, और इसको हम डिटेल में, अब मेरे इसलिए मेरे जहन में है, मतलब अगली बार मैं कहेंगे आप मुझसे टॉपिक क्या है, तो मैं कहती हूँ आपको जो लगता है कि हमारी खवातीन को, अच्छा मैं ज़्यादा वुमेन्स की बात करती हूँ। हाँ, बस देखिए जो आंवला है ना, ताज़ा आंवला आज क्यों बता रहे हैं, फिर हमारा अगले जुमेरात को कौन दिखा, हम गोंद कतीरे की बात करें। नहीं चले कंटिन्यू करें। हाँ, सही जो है। ताज़ा आंवला है ना, हाँ। वो आता है सिर्फ 2 महीने में। हाँ, वो तो मुझे पता, ग्रीन कलर में। तो हाँ, तो इन दिनों में ताज़ा आंवला नहीं मिलेगा, सिर्फ उसका पाउडर ही मिल काश सकता हमारे है, पाकिस्तान या में इसकी artificial खेती मिल हो रही सकता होती, है। हाँ। मजा आ जाता। नहीं है ना, बड़ा मसला है। हाँ। ये खास इलाकों का है, फल है, तो क्योंकि वही जब लगता है। आंवला मिल, लेकिन देखिए इसमें वो आंवला जो है ना, वो उस क्वालिटी का नहीं होगा जो दिखाना अच्छा, चाहिए मुझे कुछ लोगों चीज़ें को। ना ऐसी याद आ जाती है। आंवले के साथ होता है रेट है ना, हम चिड़ियाघर जो है ना, हमारी खाला रहती है, तो हम लोग चिड़ियाघर जाते थे, तो वहाँ पर ना बंगाली हाँ। या वो जो वहाँ पर जो साड़ी पहनती है वो हिंदुआनियाँ थी, वो क्या करती थी, सुबह वहाँ दरख्त से कुछ गिरते थे,
वो पता नहीं रेठा था क्या था, वो चुन रही होती थी वहाँ पर ना। तो मैं कहती ये क्या करे, तो अम्मी कहती थी ये बालों पे कुछ बच्चा लगाती है, पता नहीं है बालों पे कुछ लगाती, तो वो उसको घिस के या कुछ भिगो के शायद लगाती थी, कुछ चीज़ वहाँ पे गिरती थी। अब बचपन की थोड़ी यादें साथ अटैच होती है ना। तो अच्छा, इनके हिंदू वालों के बाल बड़े अच्छे होते बहुत अच्छे होते हैं, हैं, सिया रहते हैं, स्याह, बिल्कुल स्याह। मैंने उनको हर एज में देखा, उनके बाल मोटा और बिल्कुल सिल्की। अच्छा, वो ज़्यादातर देसी टोटकों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग ऐसे शैम्पू ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम तो गंजे ही होने लग गए। शैम्पू और सोने पे सुहागा कंडीशनर। अच्छा अच्छा, हिंदू है ना, ये नुकसान थे। बहुत। आपको पहले क्यों नहीं बताया? इतना मेरे साथ आपने 10-15 साल गुजार लिए, कभी क्यों नहीं बताया मुझे? ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। अच्छा। हाँ, अच्छा, इसीलिए हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें भी हमने शैम्पू बनाया, कंडीशनर मैंने बच्चों से कहा हरगिज़ ना बनाना, जिस चीज़ के हमें नुकसानात पता है वो लोगों को क्यों हम बनाकर जहर दें। ये होती है बददियानती। वही। अच्छा जी, हम बात करें गोंद कतीरे की फ़वाइद। इन्होंने ऑफकोर्स मुस्तफ़ा भाई ने बताया। अच्छा, गोंद कतीरा कुछ लोग ये आपा के पास चलती है। आपा, हम लोगों ने जैसे गोंद की चीड़ जिसमें से गोंद निकलती है, और बहुत सारी मैंने देखा लोग उसके उधर कुछ बर्तन लगा देते हैं तो वो मेल्ट होके सूख के आ जाती है। आपने देखा होगा हम लोगों की जो बच्चे डिलीवर होते हैं तो एक पंजीरी बनती है जी, उसमें भी गोंद इस्तेमाल होती है। आपने इस गोंद के बारे में कहा कि इसको भिगो के इस्तेमाल करें, जबकि वो गोंद हमारी मैंने माओ को देखा है, वो बादाम, पिस्ते, सूजी, वो भून भान के कुछ होता है। अब मुझे नहीं पता उस गोंद को कैसे इस्तेमाल करें, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। ये तो वो मैंने बताया स्किन के लिए, जिस तरह मैंने बताया बॉडी के लिए, और ख़ास दिनों में जब ख़वातीन के यहाँ डिलीवरी होती है, बिल्कुल, बच्चा उस पैदा वक्त होता है कहते हैं कि सारे जॉइंट खुले होते हैं 40 दिन तक। तो हमारे यहाँ ख़ास तौर से, अब ज़माना कदीम से हमारे यहाँ एक रिवायत है कि ख़वातीन को पंजीरी दी जाती है, और ख़ास तौर से उसमें गोंद को शामिल किया जाता है। यही गोंद, मैं यही बताना चाह रही थी कि अगर आप वैसे तोड़ेंगी या इसको ग्राइंड कर लेंगी इसी फॉर्म में, तो आपका ग्राइंडर टूट जाएगा, उसके ब्लेड टूट जाएंगे, ख़राब। ये बहुत हार्ड है जी, बहुत हार्ड पत्थर की तरह ये। आप यही गोंद हमारी पंजीरी में इस्तेमाल होता है, और तरीक़ा ये होता है कि आप इसको हल्का हल्का हवन दस्ते में या किसी भी चीज़ से कूट लें, इसको छोटा करें, और असली घी में धीमी आंच पर इसको आप भूनें, रोस्ट कर लें, रोस्ट करें। ये फूल के इतना बड़ा इतना मोटा मोटा हो जाएगा, इतना मोटा हो जाएगा, और जब वो मोटा हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा भुन गया। ठीक है, भुन गया, बिल्कुल धीमी आंच पे एकदम फुट ऐसे बड़ा होता जाएगा। और उसके बाद असली घी के अंदर, उसके बाद आप चूल्हा बंद कर दीजिए, रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद उसी पैन में आप इसको उसी कपगीर के साथ, किसी मैशर के साथ, और थोड़ा कुट कर, छोटा नहीं करना, ऐसे कुट कर लें। और उसके बाद जो पंजीरी बनी हुई, आपको पता है कि सूजी भून के सारे ड्राई फ्रूट्स और चीनी डालकर ये डलती है, और उसके बाद ये गोंद इसी फॉर्म में डलता है। और तकरीबन यानी अगर आपने 1 किलो पंजीरी बनाई है तो उसमें आधा पाव इसी तरह ये गोंद डाल दीजिए, और इसको मिक्स कर दीजिए सूखा। अच्छा, और फिर ये खाया जाता है। अच्छा, पंजीरी के अंदर आकर हम पंजीरी में ले आए से। इससे क्या होता है कि वो माएँ जो मदर फीड पे हैं, उनका माशाल्लाह से बच्चों के लिए बड़ा अच्छा सा जो दूध है वो प्रोड्यूस होता है। माओं को इसकी कमी दूर हो जाती है। इस गोंद जो दूसरी एक, हम तो गोंद कतीरे के बारे में, लेकिन उस गोंद की भी बात करेंगे। गोंद दोनों से कम्युनिकेट है। ब्रेक लेंगे। आप इसको ज़रा और बताइएगा कि इसको अगर जो हमारी उस गोंद को पंजीरी में डाल के खाई जाते हैं, या इसको भी, तो इसके फ़वाइद मजीद। हाँ, इसको भी डाल, ब्रेक में लेके करते बात, फिर बात करते लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी। और आज हमारा टॉपिक है, आज हम जिस मौजू पे बात करें हेल्थ सेगमेंट में, वो है गोंद कतीरा। अच्छा, गोंद
ऑफ कोर्स बहुत सारी तरह की होती है। अब हम आज गोंद कतीरे की बात करें और ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इसकी होम रेमेडीज़ किचन में अवेलेबल होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत रिजनेबल चार्जेस में आप इससे ख़रीद सकते हैं और अपने घर में रख सकते हैं, सालों साल रख सकते हैं। आप इतना सा लिख लें थोड़ा सा पीस। अब गोंद कतीरा के बारे में बता रहे थे कि इसको पानी में भिगोना होता है 5 से 6 घंटे, उसके बाद इसके बेनिफिट्स डबल हो जाते हैं रेडी। तो एक बार फिर मुस्तफ़ा साहब बहुत शुक्रिया। एंड रानी आपा मैं चाहूँगी वो ज़रा गोंद जो हम पंजीरी में डालते हैं इसको भी पंजीरी में डाल सकते हैं, आपने बहुत अच्छी डिटेल बताई। जी जी, इसको ही पंजीरी में डालते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि गोंद बहुत तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं, चुनिया गोंद, कीकर का गोंद, नीम का गोंद, बबूल का गोंद, जी बहुत सारे किस्म के गोंद होते हैं। लेकिन हर गोंद का थोड़ा सा, जैसे इस गोंद का कोई जायका नहीं है ना, इसमें कोई खुशबू है, लेकिन जैसे कीकर का और नीम का जो गोंद है उसमें हल्का सा जब आप महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये नीम का है, हाँ ये कीकर का है, क्योंकि कीकर भी कड़वा होता है और नीम भी कड़वा होता है, तो इसमें हल्का सा। लेकिन ये वो गोंद है जो लगाने में, खाने में हर तरह फ़ायदेमंद है। और आपने पूछा कि ख़वातीन के लिए ख़ास तौर से किस तरह ये बेनिफिशियल हो सकता है। यही गोंद इसी फॉर्म में लेंगे और इसको हल्का सा अगर कूट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और क्योंकि वो छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में आ जाएगा। इसको अगर आपको पंजीरी बनानी है, वो ख़वातीन आफ्टर डिलीवरी, जो कि पंजीरी हमारे यहाँ सदियों से इस्तेमाल होती है और आज तक इस्तेमाल हो रही है, खुदा का शुक्र है ये ट्रेडिशन नहीं बदली। तो आप इसके अंदर आप ये करेंगे कि अगर 1 किलो की आपकी पंजीरी तैयार है तो उसमें आधा पाव ये आप डाल लेंगे और आधा पाव गोंद को आप इस तरह करेंगे, यानी ये बहुत टाइट वाला गोंद बनेगा। इसमें कमर कस भी डलता है, यानी कमर को आपके कस देता है बिल्कुल। अब आप जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। जो जॉइंट खुले होते हैं उनको ये बंद कर देता है, क्योंकि ये गम है। ये बताया मैंने आपको पहले कहा कि गम है, गोंद है। गोंद का काम होता है जोड़ना किसी भी चीज़ को, और जब कोई चीज़ जुड़ जाती है तो स्ट्रांग हो जाती है। तो आप इसको भूनकर, और जिस पैन में आप इसको भूनेंगे असली घी में, अच्छे घी में जब आप भूनेंगे तो ये फूल जाएगा, और ऐसे ज़बरदस्त और धीमी धीमी आंच पर ये खूब फूल जाएगा। आप खुद इसको देखेंगे, जब फूल गया तो ज़ाहिर नरम हो गया। उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। रूम टेम्परेचर पे जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसको उसी जो आपके हाथ में इसके साथ चमचा था, कफगीर था, कोई मैशर था, उससे आप उसी पैन में इसको ऐसे कूट लेंगे। तोड़ेंगी, पीसेंगी कुछ नहीं, ऐसे कूट लेंगे। उसके बाद जो आपके पास बना हुआ गोंद है, सभी जानते हैं सूजी के अंदर बनता है, तमाम मखाने डलते हैं, तमाम ड्राई फ्रूट डलता है, और उसमें ये भी डाल लीजिए। इसको मिक्स कर लीजिए और रोज़ाना जो आपकी, जिस तरह आप देते हैं अपनी बेटी को, अपनी बहू को आप खुद लेती हैं, उसी तरह एक प्याला भर के आप दीजिए। नहार मुँह इसको ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें तमाम ड्राई फ्रूट्स हैं, असली घी है, और इसके अंदर चूँकि सूजी भी होती है, तो सूजी भी दूध जो है वो प्रोड्यूस करती है, बहुत मदद देती है। और वो ख़वातीन जो मदर फीड पे होती है उनके लिए ये बहुत, उनके लिए, उनकी बॉडी के लिए तो है ही फ़ायदेमंद, लेकिन उसके बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अक्सर बच्चियाँ थोड़ी सी एहसास कमतरी का शिकार होती हैं, वो भी अगर ये लेना शुरू करें तो अल्लाह के फ़ज़ल से उनको बहुत, अल्लाह के फ़ज़ल से अपनी कमी में। अच्छा, आपका कहने का मकसद है कि ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे डिलीवर हो तो उनके लिए हो, बल्कि जो वीक ख़वातीन महसूस करती हैं, अंदर कमज़ोरी, इम्यून सिस्टम बूस्टअप नहीं है, तो जितनी इंग्रेडिएंट्स उस पंजीरी में डल रहे हैं, और वो हम भी एक बात बताऊँ आती, अच्छा ये बात मुझे समझ में नहीं आती, ये माँ के घर से क्यों पंजीरी आती है? अब इस साला घर में क्यों नहीं बनाते हो? अच्छा ये होता था, अम्मी मेरी लेके जाती थी बहन के घर में, मुझे ये मुझे भी याद है, अम्मी मुझे कहा जब मैं तो बड़ी शौक हुई कि बनी ये भी बड़ी मतलब बड़ा बुरा लगता है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि अम्मी जिस, अच्छा मेरी मुझे सभी जी के घर में क्या हुआ जी, वो तौसीफ़ हुआ, अच्छा जी तौसीफ़ हुए, चलो जी वो बच्चा पैदा हुआ तो बाद में तो नाम रखा, हम साथ में चुन्नू मुन्नू साथ में, जैसे ये एक बच्चा है ना, मैं साथ में हमारी अम्मी ले जाती थी। अब वो मैं तो खुश होती थी बहन के घर जा रहे, अम्मी चीज़ें बनाएं, वो सारे रात को बादाम, सूजी, खोपरा, खजूर, पता नहीं क्या क्या चीजें। अच्छा मैं तो चुन बुन के खाती भी रहती थी बादाम, मम्मी ने कभी मना नहीं किया, बादाम, ये सब चीजें उसमें डलती थी, खजूर, छुआरे,
اس کے اندر کچھ ساری چیزیں تو چیزیں بڑی ہاں امی نا کوٹ ہم کے دستے ڈلتی سے کوٹتی تھی. اچھا گرائنڈ میں کچھ بھی نہیں کیا تھا, کوئی مشین پہلے نہیں استعمال ہوتا تھا, گرائنڈ میں تو پاؤڈر بن جائے گا. ساتھ میں نا اس کے اندر ہلکا ہلکا جو ہے نا وہ کھجور جیسے تھوڑی تھوڑی چٹکی بھی ہوتی تھی, اور ہمارے وہ کہتے امی کہتی تھی دو دا تھوڑا سا پکانا, مطلب اس کو کوٹتے تھے. دیسی گھی کی ایک اچھی سی خوشبو آ رہی ہوتی تھی, ایسا ہی. بالکل بالکل, آج بھی اور دیسی گھی میں ایک ہوتی بنتا تھی ہے. گوند, اچھا وہ کرنچ ہم لوگ کہتے کرنچ, جی بالکل. وہ ان کو کوٹی تھی تو وہ ایک کرنچ اس میں ڈلتا تھا. جی یہ وہی ہو جاتا ہے نا گوند. کرنچی. پھر کمر کس, یہ بھی, یہ سب چیزیں انگریڈینٹس, پھر یہ ساری چیزیں, اور یہ اللہ نے ایسی اس میں برکت دی ہے جب وہ اتنی ساری بن جاتی تھی. اچھا وہ کھانے والی ہوں, میں تو حیران ہوں, وہ کم کھاتی تھی, وہ جو ارد گرد کے پھکیاں مار انتظار کرتے ہیں سب لوگ قسم سے, اور اس کا دل بھی نہیں کرتا جو جس کو ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اندر کی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے اس دوران. یہ پنجیری آپ کو اندر سے بوسٹ اپ کرتی ہے. اچھا ایک اور چیز ہے اس کنڈیشن میں, آف کورس کہتے ہیں ایک جسم میں سے ایک جان نکلتی ہے, مطلب ایک بچہ ڈیلیور کرنا نوٹ اے ایزیسٹ جاب. ایک اللہ نے جبھی تو ایسی مانی قدموں کے نیچے جنت بنائی, ایک پروسیجر بہت تکلیف. اس میں کہتے ہیں بکرے کی گوشت کی یخنی, شوربے والے کھانے, وہ آپ کو اندر سے بوسٹ اپ کرتے ہیں. ایسا ہے آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. یخنی بہت ضروری ہوتی ہے. یخنی چونکہ گرم ہوتی ہے اور پینی گرم ہوتی ہے, اس کے بہت, وہ آپ کی باڈی کے لیے سمجھ لیں کلیننگ کا کام کرتی ہے, جیسے آپ کے اندر سے باڈی واش ہو رہی ہے. اور یہ مائیں بھی جانتی ہیں. اور ایک اور چیز ہے, اچھا اس دوران نا کوئی غلطی سے کوئی ٹھنڈا پانی, اچھا یہ ساری چیزیں میری آنکھوں کے سامنے کے لیے اس کو پتہ ہے. مطلب بھابیاں, میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی تو بھابیوں کی جو ہے وہ بھی سسٹم آن سامنے ہوتا تھا. بہنوں کی شادیاں تو یہ سب امی کیا کرتی تھی, وہ بھابھی کہیں فریج کھولے تو ہمیں کہتی تھی ٹھنڈا پانی نہیں پیو, تمہارے لیے میں نے اجوائن سونف کا پانی بنایا. یہ ظلم, اب یقین کرو ان کی شکلیں دیکھنے کی ہوتی تھی. تو بیٹا میں نہیں کہہ رہی ہوں تمہارا پیٹ سوج جائے گا, یا آپا یہ کیا تھا پیٹ سوج جائے گا. بالکل صحیح ہے. ٹھنڈا پانی سویلنگ آ جاتی ہے. یعنی وہ خواتین پہلے کی آپ دیکھیں بالکل فٹ ہوتی تھیں, آج کل ایک بچے کی ڈلیوری کے بعد عجیب سا باڈی, اتنی باڈی ان کی بے شیپ ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کو شرم آتی ہے. وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب پہلے بڑی بوڑھیاں ہوتی تھیں, جوائنٹ فیملی ہوتی تھی, نانی دادی ساس آپ کے سر پہ موجود ہوتی تھی, آپ لوگ اس کو سختی سمجھتے تھے, لیکن دراصل وہی اصل زندگی تھی. وہ آپ کو ٹھنڈے کھانے سے روکتی تھی. یعنی کہتے ہیں 4واں مہینے کے دوران اللہ کے فضل سے بینائی صحیح ہے تو اخبار باریک چیزیں نہ پڑھو. یہ بات بھی سنی تھی کہ نظر زیادہ نہ ٹکاؤ, آپ کی آنکھیں کمزور ہو جائیں گی. زور سے چھالیا اور کوئی چیز دانتوں سے نہیں توڑو, دانت کمزور ہو جائیں گے. تو میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہی ہوں ماشاءاللہ. میری 6 نندے, میرے 6 دیور جیٹ, اور ماشاءاللہ یہ فیملی ہمیں یہ سکھایا ہے نا جی. جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اصل زندگی وہ لوگ جیتے ہیں, اور میں تو اپنی وہی بہت خوبصورت زندگی جی ہوں. مجھے بہت اپنوں کا ساتھ رہا, اور آج بھی بہت پسند کرتی ہوں. مجھے اکیلے لوگ اچھے نہیں لگتے. اور مجھے بھی. ہاں, مجھے آفر ہوئی پکنک پہ, اب وہاں جاؤ آپ رہو, فارم ہاؤس آپ دونوں میاں بیوی جاؤ, اور میں نے کہا میں تو نہیں جا رہی. اچھا اس کے منہ پہ میں نے کہہ دیا, میں نے کہا میں نہیں جا رہی اکیلے, مجھے مزہ ہی نہیں آئے گا, میرے بھانجے بھتیجے نہیں ہوں گے, میری بہنیں نہیں ہوں گی, بھابھیوں کے ساتھ اتنی میری دوستی ہے. میں نے کہا میں تو نہیں جا رہی. کہہ رہے یار جاؤ دونوں میاں بیوی, ٹائم اسپینڈ کرو, فارم ہاؤس ہے, یہ ہے وہ, جاؤ انجوائے. میں نے کہا نہ بابا نہ, میں نہیں جا رہی. تو اب وہ مزہ ہی نہیں آتا. ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے آج کل طلاقوں کا ریشو جتنا ہے, نا اتفاقیوں کا ریشو جتنا ہے, وہ صرف اکیلے رہنے کی وجہ سے. جو لوگ جوائنٹ, کبھی آپ نے پہلے سنی تھیں طلاقیں, کبھی آپ نے پہلے ناچاقیاں سنی تھیں, سب مل کے رہتے تھے. بڑے بوڑھے گھر کی دادی نانی ساس سسر پھپھیاں چچیاں تائیاں, سارے پرابلم وہ سالو کرتی تھی. میاں بیوی کو نہیں پتا تھا. آج کل سب اپنے اوپر ذمہ داریاں لے لی. تو اس لیے جہاں لوگ یہ سوچتے ہیں نا اکیلے پن کے ہمیں فوائد ہیں, آپ یقین جانے کہ وہ دراصل اپنے لیے بہت نقصان خرید رہے ہیں. اور آپ کے اس ٹارچر میں رہتے ہیں, وہ بیگم باہر جائیں تو چابی ہاتھ میں ہونی چاہیے, کھانا آپ کو خود بنانا ہے, کپڑے آپ کو خود, بہت ساری اتنی سارے پریشر. اور یقین کریں ان رشتوں سے آپ کے بہت ساری جو ہے نا شیئر ہو جاتا ہے, کام شیئر ہو جاتا ہے, تو برڈن کم ہو جاتا ہے, ریلیکس. لیکن ہم لوگ وہ چیزوں کو بھی سمجھ نہیں پا رہے, لیکن آہستہ آہستہ جب آگے آپ کی اولاد ہوگی تو سمجھ آ جائے گا. لیٹس سی, گوند کتیرے کی ٹوٹ پھوٹ کی بات ہو رہی ہے, مردوں کے لیے کتنا فائدہ ہے, بیچارے ان کا بھی تو بات کر لو. مصطفیٰ صاحب آپ بتائیے, مجھے راستے میں مجھے بتا رہا تھا یہ کیا عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے, کچھ نہیں بیچاروں کے لیے. اچھا چلے چھوڑیے, بتائیے
कौन कौन से ऑर्गन को ये अंदर जाके बूस्ट अप करता है? जैसे जिगर ठंडा करता है, मैदा ठंडा, क्या करता है? देखिए, Working out अगर सिर्फ इसकी अकेली बात की जाए तो ये जिगर, मैदे और बहुत सारे दिमाग के अमराज, अच्छा। कैल्शियम के लिए फायदे, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ में आप कुछ चीज़ों को ऐड कर लेंगे तो ये विटामिन डी के लिए है, अर्थराइटिस के लिए है, माइग्रेन के लिए है, यूरिक एसिड, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और ठीक हो लेकिन सकती है अगर अकेले बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ जिस्म में ठंडक लाने के लिए है, जिगर गर्मी के लिए है, मसाने के लिए है, बालों सर के लिए है। Good. और ये मर्दों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन मर्दों में भी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है ये उसको भी ख़त्म करता है। अच्छा, अमूमी तौर पर जिन मर्दों की कमर बहुत ज़्यादा झुक गई है ठीक है। या कमर सीधी नहीं होती है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन मर्दों को रात को नींद नहीं आती है उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा सॉरी फायदेमंद मुस्तफा भाई, आप इसको डिटेल में और दीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आगे बहुत सारे आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी। और हेल्थ सेगमेंट में आज हम जिस टॉपिक पे बात करें वो है गोंद कतीरा। गोंद बहुत सारी होती हैं और बहुत सारे ऐसे दरख्तों पे होती हैं जो बड़ी फ़वाइद देती है, जैसे कीकर पे। अब हम लोग जैसे केपी के गए, वहाँ चीड़ के दरख्तों पर जो है गोंद निकल रही थी और उसके इतने सारे बेनिफिट्स वो औरत बता रही थी। मैं अगर यहाँ बताना शुरू करूँ तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे, अब डिपेंड करता है आप उसका यूटिलाइज़ क्या करते हैं। उसकी फॉर्म थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। कुछ लोग पंजीरी में डालते हैं, कुछ लोग पानी में घोल के पी रहे हैं, कुछ लोग तवे पे सेकते हैं, उसके बाद उसकी कंडीशन। तो बात अब कर रहे थे, लेकिन अब मुस्तफ़ा के पास चलते हैं। मुस्तफ़ा कुछ बताए थे कि गोंद के, जैसे आपकी कमर में दर्द है या आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, जिंक की कमी है, तो उसके फ़वाइद बता रहे। जी सर, बेहतरीन ये काम ये होगा कि इसको भिगो दिया आपने, सुबह में इसका पल्प बन जाएगा। ठीक है। इसी पल्प का जड़ी बूटी है उसको साबुत इस्पागोल कहा जाता है। ठीक है, 1 टेबल स्पून ये, 1 टेबल स्पून वो, ठीक है। इसको पका लें आधा गिलास दूध के अंदर, ये ओके। खीर बन जाएगी। ओह, और ये खीर आप सुबह नाश्ते जबरदस्त, में या रात सोते वक्त खाएं तो ये उन मर्दों के लिए या उन बच्चियों के लिए जिनको प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी ठीक है, या जिनमें एग्स प्रोड्यूस नहीं होते, ओके। उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदा। जबरदस्त। दूसरी बात ये कि कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसकी वजह से बॉडी के बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं जिनको हम समझते नहीं हैं। उन अमराज का नाम मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बग़ैर किसी वजह के जिस्म से इखराज हो रही होती हैं, जिसमें ख़वातीन में प्रॉब्लम है जिसको वाइट वाटर कहा जाता है, ठीक है, लिकोरिया, ठीक है, मर्दों में प्रॉब्लम जिसको जरियान कहा जाता ठीक है, है। तो ये अल्लाह के हुक्म से उसको ठीक करता है। जबरदस्त सर, बहुत दूसरी बात ये कि जिन लोगों की हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं या रीढ़ की हड्डी बिल्कुल झुक गई है, सही है सर। या कंधों में हर वक्त खिंचाव रहता है, तो यही गोंद कतीरा ले लिया जाए। और जबरदस्त। इसके साथ में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान का लेना है 1 बाल, ½ टी स्पून लेना है हल्दी, और यही गोंद कतीरा लेना है। इसको पकाना है आपको 1 गिलास पानी के। ओके, तो ये भी थोड़ा सा जूस सा बन जाएगा। और ये जूस रात को सोने से पहले पिएं और सुबह में उठकर बस कुछ नहीं करना। सुबह जब उठेंगे आप तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पूरी रात में जो इस गोंद की मदद से अल्लाह ने चाहा तो जो आपकी हड्डियों में टूट फूट हो रही थी, जो सीधा सोना या करवट लेना मुश्किल होगा, तो 1 दिन में इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा। वाह भाई, बात वाह। सुन लीजिए, जबरदस्त। 1 टीस्पून ये गोंद कतीरा, ½ टी स्पून हल्दी और 1 ज़ाफ़रान का बाल, 1 गिलास पानी में इसको बॉईल कर लेंगे, जूस बन जाएगा। चाहें तो इसमें हस्बे ज़रूरत शहद, गुड़ या चीनी डाल लें, चीनी का इस्तेमाल ना करें बेहतर होगा। बस ये रात सोने से पहले आप ये जूस पी लीजिए तो इंशाअल्लाह ताला ये आपकी बॉडी में विटामिन D3
आयरन और विटामिन सी बनाएगा, जिससे इंटरनली तौर पर आपके जॉइंट्स मजबूत होंगे। ओके। जो पट्टे कमज़ोर हो गए हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। ज़बरदस्त। इसमें एक चीज़ और है, वो है गोंद कीकर, गोंद कीकर। अगर वो भी इसमें शामिल कर देंगे तो जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है अर्थराइटिस का, अल्लाह ना करे हाथ पाँव टेढ़े हो जाते हैं, हड्डियाँ कड़व हो जाती हैं, तो ये इंशाअल्लाह ताला उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद तो एक बार फिर बताना क्या क्या इंग्रेडिएंट्स क्या थे होम रेमेडी में? गोंद कीकर, ठीक है, गोंद कतीरा। ठीक है, लेकिन गोंद कीकर को भूनना नहीं है ना उसको डुबोना है, बस ऐसे ही उसको पीस लेंगे, ठीक वो है, पिस जाता है वो। ठीक है, 1 टीस्पून ये लिया जाएगा, इसमें 1 टीस्पून ही गोंद कतीरा लिया जाएगा, ओके। आधा चमचा हल्दी और 1 ज़ाफ़रान का जो और इसको टुकड़ा गोल है। साबुत इसको गोल नहीं वो एक वो अलग नहीं, चीज़ वो थी। अलग, ठीक है, इसको आपने पानी में बॉईल करके, ये पानी रात को सोने से पहले पीना है। अच्छा। तो ये विटामिन डी, विटामिन D3, विटामिन सी के लिए बहुत फायदेमंद है। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। मैंने बताया था कि जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है एग्स का, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है इनफर्टिलिटी का, उनके लिए 1 टीस्पून गोंद कतीरा और 1 टीस्पून ही आप लेना है साबुत इस्पगोल। ठीक है, इसको डालें दूध में, खीर पक जाएगा। ठीक तो है। ये खीर बन जाएगी। ये खीर सुबह नाश्ते में या दिन में 1 मरतबा खाएं, कुछ दिन तक खाते रहेंगे तो ये एग्स के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, वाइट अच्छा, वाटर आपने के कहा लिए। 1 चम्मच गोंद कतीरा दूध में डालें। अब ये दिल्ली वाला डालें या जो भिगोया हुआ है वो डालें? भिगोने वाला। भिगोने वाला डालें, क्लियर कर देना तो को पता चल देखिए जाए। जो मैंने होम रेमेडी बताई है आपको, सबके अंदर ये भीगा हुआ ही है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ जो गोंद कीकर है वो साबुत डलेगा हड्डियों के लिए। मैं समझ गई। ओके जी, और ये डन भी डन। बता दो ना कि तमाम अद्वियात इनके मुस्तफ़ा ये सारी अद्वियात बनाई हुई सेल करते हैं। बनी हुई है मुस्तफ़ा के जबरदस्त। पास, अभी अगर हम कोई चलेंगे लेना ना, चाहे। आपने मैसेज देना है और अपना नंबर भी देना है ताकि हाँ, लोग बताओ आपसे और कि मुस्तफा तुम्हारे भाई पास आप बनी बनाई मिल बताएं। जाती है अब भाई fertility मैं के लिए। इसलिए बोलती हूँ कि अल्लाह करे किसी को फ़ायदा हो जाए, तो आप अपना वो भी बताएं किस टाइम आप बैठते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करते हैं। मुस्तफा भाई अल्लाह पाक बस ये हम लोग कुछ शायद ब्रिज बन रहे हैं, अल्लाह पाक किसी को शिफा दे दे हमारे वसीले से। और क्या चाहिए जी, मैसेज दीजिएगा। नहीं, मेरे टाइमिंग है सुबह 11 से 1, शाम को 5 से 8। मेरा क्लिनिक सोसाइटी ऑफ ब्लॉक 2 PCCS में है। तो अल्लाह ना करे किसी भी मर्ज के सूरत रब्ता कर सकते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस है, कैंसर है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जिसमें अल्लाह बिनाई का प्रॉब्लम है। आज का हम एक इलाज कर रहे हैं जिन लोगों की बिनाई ख़त्म हो गई है, एक अंडर 40 एज के अंदर, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे इलाज से इंशाअल्लाह वो बिनाई भी इंशाअल्लाह ताला ठीक। वापस आ रही जबरदस्त। तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है हाँ, आप बताएं। 0333 395 4412। अब आगे गुड हो बताइए। गए। और मेरे बेटे का क्लिनिक मेरे पार्लर के बराबर में है। रानी पार्लर को सभी जानते हैं। इसके अलावा जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स शुरू करवाती थी, और अभी मैंने अनाउंस किया था कि इंशाल्लाह मैं जुलाई में शुरू करूंगी, लेकिन जून और जुलाई बच्चों की छुट्टियां चल रही थी। तमाम लोग कुछ शहर से गए हुए थे, कुछ मुल्क से गए हुए थे, कुछ नानी के घर थे, कुछ दादी के घर थे। अलगर्ज मैंने इसलिए क्लासेस मुलतवी कर दी थी क्योंकि वालदैन भी मसरूफ़ थे अपने बच्चों के साथ। अगस्त के महीने से इंशाअल्लाह ताला मैं नए कोर्स का आगाज़ करूँगी। आप लोग मुझसे नंबर ले लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिएगा और इंशाअल्लाह मैं आपको सही तारीख़ बता दूँगी। मेरे नंबर है 0334 322 6502। एक PTCL नंबर है, वो है 0213 45 368 45। इन Good. नंबर पर आप मेरी पार्लर के लिए, मेरी प्रोडक्ट के लिए, मेरी क्लासेस के लिए, मुस्तफ़ा साहब के लिए जो चाहे मुझसे मालूमात ले सकते हैं। गुड हो गया। अब आपने ये क्या कहा, आप मुझे जानते हैं? अरे आपको सारी दुनिया जानती है, आप हर्बल दुनिया की रानी। सुभान अल्लाह, सुभान। आपको कौन नहीं जानता। बहुत शुक्रिया, और बड़ी इतनी इनायत है। इनके अंदर अम्मी है, मैं भी बैठे बैठे अम्मी बोल लिया था इनको।
ان کے اندر دادی ہے, اس میں نانی ہے, پڑ دادی پڑ نانی, ان کے اندر پورا ایک حکمت کا پورا جو ہے خاندان جن چھپا ہوا جن جن چھپا ہوا ہے. ہاں صحیح بات, ایک جن چھپا ہے جو نکلتا ہے. تو ایک نئی نئی عمریں ملی نئی نئی چیزوں کی. اور آپ یقین کریں مجھے بہت ساری نالج آپ کی وجہ سے ہوئی ہے, کیونکہ جس طرح آپ ایک ایک چیز کو کلیئر کر کے بتاتی ہیں اور پھر مصطفیٰ بھائی اوپر تڑکا لگاتے ہیں, تو میری نالج میں بڑا اضافہ. جو مجھے کہتے ہیں نا یار تمہیں اتنا کچھ ہے, تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے یار ایسے ہی لوگ آتے ہیں پروگرام میں اور ان کی محبتیں, تو آپ کا بہت شکریہ. آپ جیسے لوگ پذیرائی کرنے والے ہوں تو انسان کو بہت یعنی ملتا فیڈ بیک ملتا ہے اور بہت انسان بیک اپ ہوتا ہے. آپ لوگ بس ہمیں دعا یہ دیں کہ ہم ہمیشہ بڑوں کی عزت کرتے رہیں. بہت شکریہ. نہیں آپ کرتی ہیں, بہت کرتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عروج دی. بہت شکریہ آپ آنے کا, بہت شکریہ مصطفیٰ آپ کا آنے کا, بہت شکریہ. دو میں یاد رکھیے گا. ناظرین ہم لوگ آپ کا ایک خوبصورت پروگرام آپ نے دیکھا اور یہ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں آتی ہیں. میں ان کی دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ کرتی ہوں اور یہ صرف آپ لوگوں کے لیے کہ اچھی نالج آپ تک پہنچے. لیٹس سی یہاں پر لیں گے بریک اور ملتے بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. دیکھتی ہوں جہاں ویلکم اگین, گڈ مارننگ سبھی کے ساتھ.